اور ہم وہ سنی ہے ڈرتے نہیں ہیں، مر کے بھی ہم تو مرتے نہیں ہیں، ارے بھوک کی فکر کرتے نہیں ہیں، شیر ہیں گھاس چرتے نہیں ہیں، تیرے دشمن چلاتے رہیں گے، ہم بھی سینہ دکھاتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے سلام کا جواب وفادار رسول دے۔ جیسا آپ یہ ریکارڈنگ سماعت فرمائیں گے، اس میں ایک بھائی جو تکمیلی جماعت میں جانا شروع کیا جس نے، اور اس کے بھائی نے اس کو دیکھا اور اس کو معلوم ہے کہ یہ گمراہ کی جماعت ہے اور یہ کافروں کی جماعت ہے، اس کے تعلق سے اس نے ہمارے حضرت صوفی جلال الدین چشتی قبلہ صاحب کو کال کیا اور ان کو اس کا نمبر دیا۔ آپ نے اس کی بخوبی بہترین طریقے سے اصلاح کی اور دوران گفتگو اس کو سمجھ میں بھی آیا کہ ہاں بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ تو ماشاءاللہ صوفی جلال الدین چشتی صاحب دیوبندیوں وہابیوں کے گڑھ میں گھس کے ان سے بات کرتے ہیں۔ جیسا آپ کو پتہ ہوا کہ حافظ علی اصغر کی کمر انہوں نے توڑی، جو اس کے گڑھ میں گھس گئے اور اس کی حقیقت کو سامنے لے کے آئے اور الحمدللہ باطل کا چہرہ سامنے لائے، اور آج اس کی جو تھو اور اس کی جو رسوائی ہوئی، جس نے دنیا دیوبندیت میں اپنے آپ کو مناظر کے نام سے پہچان بتاتا تھا، آج اس کی ایسی ذلت اور رسوائی ہوئی کہ وہ اپنا چہرہ دکھانے کے لائق نہیں رہا۔ ایسے ہی بہت سے وہابی دیوبندیوں کے گڑھ میں گھس کے صوفی جلال الدین چشتی صاحب نے ان کی کمر کو توڑا ہے، اور الحمدللہ آگے بھی وہ ایسے ہی توڑیں گے۔ اب کسی بھائی کو اگر کسی وہابی دیوبندی سے بات کروانا ہو یا کسی کی اصلاح کرانا ہو تو وہ مجھ سے کانٹیکٹ کرے۔ میرا نمبر ہے 9958618727۔ ایسے بنا اجازت میں صوفی جلال الدین چشتی صاحب کا نمبر نہیں دے سکتا ہوں، ہاں اگر آپ مجھے پرسنل میں کانٹیکٹ کریں تو میں ان سے اجازت لے کے ضرور دے سکتا ہوں۔ تو آپ لوگ دعا میں یاد رکھیں اور زیادہ سے زیادہ اس ریکارڈنگ کو پھیلائیں تاکہ آپ کے دوست بھائی احباب جو ہیں کافروں سے بچیں، مشرکوں سے بچیں اور حق جماعت میں رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں دستگیر بھائی بول رہے ہیں؟ ہاں جی دستگیر بھائی بول رہے، خیریت ہے؟ جی خیریت، آپ بتائیے۔ بات ہو تھی میں رک گیا۔ ہاں کل وہ آپ کے بہنوں ہی شاید ہے، وہ انہوں نے نمبر دیا تھا، ان کا کال آیا تھا، میں بزی تھا، بات نہیں کر پایا۔ کون کیے تھے؟ ہاں فون کیے تھے، بات ہوئی کہ نہیں پوچھنے کے لیے فون کیے تھے۔ نہیں میرا نمبر، فون نمبر کون کیا بولے آپ نے؟ آپ کے بہنوئی یا کچھ کوئی پتہ نہیں، ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، بہنوئی کریم اللہ خان، کریم اللہ۔ ہاں ہو سکتا ہے، وہ کیا بولتے ہیں دھرم، کون سے جگہ کا نام ہے؟ مدن پلی۔ مدن پلی سے دیے ہیں۔ تو اچھا یہ بتائیے، آپ جب پہلے جماعت میں تھے ہمارے سنی جماعت میں، کیا سنی جماعت والے سب کیا مسلمان ہیں یا کافر ہو گئے ہیں؟ آپ چھوڑ دے دوسرے جماعت میں چلے گئے؟ مسلمان ہی، لیکن دیکھو آپ یہ بتاؤ، اب جو بریلی ہے، بریلی آنے سے کیا نقصان کیا ہے، اس میں فائدہ کیا ہے؟ یعنی بریلی میں رہنے سے کیا فائدہ کیا ہے، آپ بتاؤ ہماری طرف۔ اچھا ابھی آپ نے کہا، سنیے، نبی کی حدیث ہمارے لیے نمونہ ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات ہمارے لیے نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح ہے کہ میری امت 73 فرقے میں ہوں گے اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی 72 جہنم میں جائے گا، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ یہ حدیث ہے، ہر فرقے والے یہ حدیث مانتے ہیں۔ تو ابھی آپ نے کہا کہ جو بریلی ہے وہ مسلمان ہی ہے، کافر نہیں ہوئے۔ تو جب مسلمان ہی ہے تو اس سے دور ہونا، یعنی مسلمان سے دور ہونا، اور مسلمان ایک ہی ہوتا ہے، سنیے
बात मेरी मुकम्मल होने दीजिए, मेरी बात मुकम्मल होने दीजिए। अजीज बोले ना, अब अजीज बोले ना, मुकम्मल होने दीजिए ना, बात कंप्लीट होने दीजिए। बोलो। तो मुसलमान एक ही होता है, पूरे 73 में से 72 जहन्नमी, एक जन्नती और एक ही मुसलमान होता है। बाकी जो तबलीग वाले जाओ, शिया जाओ, कादियानी की तरफ जाओ, अहले हदीस की तरफ जाओ, सबके सब काफिर है, उनकी किताबों से साबित है। मैं आपको बता सकता हूँ, पहले आप बात कर लो फिर मैं बताऊंगा। वो जब हदीस बोले ना, हर एक भी बोल रहे, अहले हदीस वाला बोलते हैं वो तो अव्वल 72 शिरक है, वो शिरका वाला सही शिरका वाला सही तरीका वाला मैं हूँ बोलता, कौन अहले हदीस बोलता, ये भी बोलता। ये जमात वाले बोलते हैं ये हम पहले हदीस यानी 72 जो ही सही तरीका वाला हमारा ही नबी के तरीके पर चलने वाला, हर एक भी यही बात बोलता। जी 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 हाँ तो वो तो आप बोले, मैं उसी को समझाने के लिए तो मैंने आपको कॉल किया आपसे बात को। तो हर फिरके वाले बोलते हैं कि हम हक पर है, बाकी सब गलत हैं। सब हर एक फिरके वाला यही बोलता। अभी आपने जो कहा कि तबलीग जमात वाले में आप गए और आप कह रहे हैं कि जो पहले सुन्नी जमात थे बरेलवी वो भी मुसलमान ही है। आप उनको काफिर नहीं कह रहे, मुसलमान ही कह रहे हैं। लेकिन आप जिस जमात में गए उस जमात के उलमा तो मुशरिक और बिदाती कहते हैं। कौन बोलेगा ऐसा? मुशरिक शिरिक करते हैं। कल आपने कहा कि पीरा के पास जाके झुकना और सिजदा करना, तो क्या फिर मुशरिक नहीं हुए फिर? वही बता रहा हूँ ना। अब जो जब मुशरिक हो गए, आप कह रहे हैं मुशरिक हो गए, पीरा के पास झुके तो शिरिक कर लिए, और आपके उलमा भी कहते हैं शिरिक कर लिए पीरा के पास जाके। कोई झंडा है, झंडे का झाड़ है, कोई झंडे का जरिया, तो उसके पास सजदा। कोई खबर अच्छी मिल गई उसके पास सजदा। तो फिर ये आप अनपढ़ आदमी की बात कर रहे हैं या आलिम की बात कर रहे हैं? मुझे आलिम की बात बताओ, कौन आलिम ने करा या आलिम ने करने के लिए बोला? आम बात है, ये तो आम बात है। इधर आम बात है तो आम की बात दलील नहीं होती। आप मुसलमान सुनो, आपके मदनपल्ली में कोई मुसलमान शराब पीता होगा, कोई ना कोई शराब पी रहा होगा। बहुत सारे। तो क्या इस्लाम में शराब की इजाजत माना जाएगा? नहीं तो हराम है। नहीं हराम। तो अगर आम बंदा आम हो जाए तो भी हराम ही रहता है, हलाल नहीं हो जाता। आप पूछना चाहिए उलमा इसको हलाल मानते हैं या हराम मानते हैं। उलमा ने अगर कह दिया कि नहीं सिजदा करना जायज़ है, सिजदा करना सवाब है कहीं मज़ार पे या कोई झंडे पे, तब आप कह सकते हो कि हाँ ये जमात गलत है, इस जमात के आलिम कह रहा है, और ये जमात के आलिम ही जब गलत रास्ते पर ले रहे हैं तो ये गलत है। आम आदमी कह रहे हैं हमारे पास कोई तलवार नहीं, हमारे पास कोई बंदूक नहीं, आवाम को जबरदस्ती हम रोके। हमारे सिर्फ कहने का काम है। हमारे आला हजरत ने और हमारे बरेली के दीगर उलमा ने हमको साफ साफ फरमा दिया कि कोई भी सिजदा भी नहीं, रुकू भी नहीं, तवाब भी नहीं, कोई भी अल्लाह वालों के मज़ार पे इस तरह के काम बिल्कुल नाजायज़ है। अल्लाह वालों के मज़ार पे हमको सिर्फ जाकर फातिहा पढ़ने की, दुआ करने की, उनके वसीला से दुआ मांगने की और उनके फैज़ हासिल करने की इजाज़त है। सही बात, आपने सही बताया। तो ये जब सही है तो सही रास्ता छोड़कर आप गलत रास्ते पर क्यों जा रहे हो? अब जो आप बोलते हैं ना कि अभी आप बोले ना ये बताने का है, उनके पास जाते ही ये तरीका करी हम नहीं, उनके पास जाते ही नहीं आता। आप जाहिलों के पास गए हो, आपकी गलती है। आप उनके पास जाते ही आप गलती कर रहे हो। आप जिनके पास भी जा रहे हो जाहिलों के पास जा रहे हो। आप मेरे जैसे और मेरे से बड़े बड़े उलमा के पास, आलिम के पास जाना चाहिए सीखने के लिए। जाहिल के पास नहीं जाते, जिसको खुद रास्ता मालूम नहीं, जो खुद जाहिल हो, दूसरे जाहिल के पास जाने से क्या इल्म हासिल होगा बताइए? कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। एक नंबर के जाहिल। आप अगर आलिम नहीं तो आपको आलिम के पास जाना चाहिए सीखने के लिए। सही बात बेशक, सही बात। तो आप जिनके पास भी आज तक गए हो, जिन लोगों ने आपको कब्र को, मज़ार को सिजदा करने के लिए आपको कहा हो या सिखाया हो या बताया हो या खुद आपके सामने किया हो, वो सब के सब जाहिल अनपढ़ गवार हैं। कोई भी आप एक बार बरेली जाओ, वहाँ आला हजरत के दरगाह में जितने उलमा बैठे हुए हैं, वहाँ मदरसा है, आला हजरत के दरगाह में जो तालीम दी जा रही है वहाँ जाके देखो, वहाँ कोई भी इस तरह की गलत हरकत नहीं मिलेंगे।
वहाँ तावीज़ों का चादरों का धंधा नहीं होगा, वहाँ कोई जबरदस्ती तुमको फूल चढ़ाओ, जबरदस्ती तुमको नजराना रखो, ये रखो वो रखो, ऐसा कुछ नहीं बोलेगा। तो सच्चा मजहब अहले सुन्नत व जमात जो 1400 साल से है, ये तबलीग जमात अभी अभी नए नए पैदा हुए हैं और हर फिरका दावा करेगा, पूरे 72 फिरके दावा करेगा कि हम हक पर है, लेकिन दलील ये है नया फिरका गुमराह है। सही बात, नया फिरका गुमराह है। तो आप आज तबलीग जमात आपको मिली, आपके बाप दादा के पास तबलीग जमात वाले ने, उनको तबलीग जमात नहीं मिली, वो सही रास्ते पर थे। आपके बाप दादा पुराने मसलक पर थे, आज आपको कोई नया फिरका मिल गए, आप उसमें चले गए, बोले मुझे रास्ता मिल गया, तो कल आपको और दूसरा रास्ता मिल जाएगा, जिंदगी पर भटकते रहोगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी बात, ये सब बातें आपको बताया, अभी एक बात आपको समझने के लिए एकदम फाइनल बात बता रहा हूँ। आपने जो हमारी गलतियां बताए, हमारे आवाम की हम बात बताए आपने कि आवाम गलती करते हैं, झंडे जहाँ झंडा देखे वहाँ सिजदा कर रहा है, वहाँ नजराना रख रहे हैं, वहाँ चादर चढ़ा रहे हैं, ये सब गलती किसकी है? आलिम की नहीं, आवाम की है। आप बता दिए। लेकिन अभी हम तबलीग जमात की बात बता रहे हैं, तबलीग जमात की आवाम की गलती नहीं बता रहे, उनके उलमा की गलती बता रहे हैं, क्योंकि उलमा की गलती बड़ी गलती होती है, आवाम की गलती बड़ी गलती नहीं। आवाम तो जाहिल है, गलती करेगा ही, लेकिन बताना चाहिए ना भाई, गलत है ये मत करो। बताए तो हम कब बोले नहीं बताना चाहिए? हम तो बताते ही रहे, अभी तो बता रहे वही। हमारी गलती आवाम की गलती और तबलीग जमात की गलती, उनके उलमा की गलती, तो बड़ी गलती किसकी हुई? सही रास्ता नहीं बताया ना, सही रास्ता नहीं बताया। देखो आप समझो, एक अनपढ़ आदमी खड़े होके पेशाब कर रहा है और एक मौलाना होके खड़े होके पेशाब कर रहा है, तो लोग किसको ज्यादा गलती मानेगा? किसकी गलती ज्यादा? मौलाना कर रहा है, मौलाना को ये तो जाहिल छोड़ दो, लेकिन मौलाना काम करे तो गलत है। गलत बड़ी गलती नहीं हुई ना, मौलाना होके, आलिम होके। तो वही बात बोल रहा हूँ, गलती को हर इंसान की गलती को टोकना चाहिए, गलती को सुधारना चाहिए, लेकिन आम आदमी जो गलती करता है वो गलती को सुधार सकते हैं और सुधारने की कोशिश करना जरूरी है। लेकिन आपकी जमात के उलमा ने बड़ी बड़ी गलती लिखे किताब में, जिसकी वजह से हम लोग उनको मुसलमान नहीं समझते। उनकी गलती, तबलीग जमात के बड़े बड़े उलमा ने गलत किताब, ऐसी किताबें लिखी जो आदमी जुबान पे लाए तो काफिर हो जाता है। ऐसी बातें तबलीग जमात के बड़े बड़े उलमा ने लिखे हैं। आप बताओ, उन उलमा के रास्ते पर आप पीछे चल रहे हो तो फिर गलत है ना। तो इस वजह से ये तबलीग जमात कभी भी, इनके उलमा हमारे सामने नहीं बैठ सकता। सुन्नी जमात के उलमा से ये लोग डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि इनके उलमा ने किताबों में गलत बात लिखी है। अब ये तबलीग जमात की एक किताब है, तबलीग जमात की एक किताब है, किताब का नाम है बराहीन कातिया और एक किताब है फतवा रशीदिया। तबलीग जमात की दो बड़ी बड़ी किताबें हैं। देवबंदी जमात, देवबंदी तबलीग जमात जो है ना, देवबंद के उलमा को मानते हैं, समझे? देवबंद के उलमा के रास्ते पर चलते हैं। तो देवबंद के उलमा ने किताब में लिखा हुआ है, ये फतवा रशीदिया में और बराहीन कातिया में, अल्लाह झूठ बोल सकता है। अब बताओ, ऐसा अगर कोई सोचे समझे तो मुसलमान होगा या काफिर होगा? बोलो। अल्लाह ही हो सकता है, तो गलत बात है। अल्लाह गलत बात तो गलत, गलती की हद नहीं है। ऐसी बात अगर कोई अकीदा रखे, अगर उसका ईमान होता है, वो अगर ये अकीदा रखे कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, तो क्या उसका ईमान रहता है? नहीं रहता। अल्लाह को ही जब झूठा कह दिया तो उसका ईमान कहाँ बचा? तो आप जब बड़े उलमा गलती करे और उस गलती को ये लोग मान रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो चोर को सपोर्ट करने वाला चोर होता है कि नहीं? चोर होगा। समझो, आपको कोई चोर चोरी करके भाग रहा था, लोग पीछे पीछे भाग रहे थे, चोर आपके घर में घुस गया, तो और आपने चोर को बचा लिया, छुपा लिया, चल मेरे घर में आया, जान बच गई, लोग भीड़ आ रहे हैं, भीड़ को मैं भगा दूंगा। तो भीड़ वालों को आपने कहा कि नहीं चोर उधर चला गया, लेकिन आप छुपा के चोर को रख दिए।
फिर बाद में जब पता चला कि चोर को ये आदमी ने छुपा के रखा, ये भी चोर होगा, तो लोग आपको क्या समझेंगे? चोर ही समझेंगे। बोले ये देखो ये चोर को बचा रहा है और चोर क्या ये सपोर्ट कर रहा है, शायद ये पार्टनर है चोर का। हाँ सही बात। तो गलती एक बड़ा आलिम ने गलती किया, देवबंद के बड़े आलिम ने ऐसा लिखा कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, और उस झूठ को, उस किताब को देवबंदी लोग आज भी प्रचार कर रहे हैं, फैला रहे हैं। तबलीग जमात की मस्जिदों में मिलेंगे, उनके मदरसे में मिलेंगे। तो आप बताओ वो चोर के साथ चोर हुआ कि नहीं तबलीग जमात पूरे? नहीं। आप नमाज पढ़ो, आपके हम सपोर्ट करेंगे। आप रोजा रखो, नमाज पढ़ो, दीन की दावत दो, नमाज की दावत दो, अल्लाह रसूल की बातें करो, हर बात हम सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप खुद गलत बात को सपोर्ट कर रहे हो तो आप गलत होए कि नहीं? हाँ सही, गलत है। तो ऐसी बातें एक दो नहीं, तबलीग जमात की 300 बातें ली। अल्लाह झूठ बोल सकता है, ऐसी ऐसी 300 बातें हैं अलग अलग। अब इन बातों की वजह से तबलीग जमात वालों को हम मुसलमान नहीं समझते। हाँ, आप अल्लाह वालों के पास हम जाते हैं, हम सिजदा भी करने को नहीं कहते, हम वहाँ इबादत करने भी नहीं कहते, हम सिर्फ कहते हैं कि एक अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। लेकिन जाहिल अवाम क्या करते हैं, ताज़ीम करने के लिए बुजुर्गों को दिल से मोहब्बत अकीदत के साथ उनको मोहब्बत के तौर पर सिजदा करते हैं, इबादत का नहीं, मोहब्बत का सिजदा करते हैं। तो इस वजह से वो हराम काम कर रहा है, मोहब्बत का सिजदा नहीं है, हराम कर रहा है, गुनाहगार हो रहा है, काफिर नहीं हो रहा है, फिर भी गुनहगार होता है। कोई अगर कब्र पे जाके सिजदा करे तो क्या होता है? गुनाहगार होता है, काफिर नहीं होता, क्योंकि वो खुद भी समझता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। जब इबादत के लायक कोई है ही नहीं, तो ये बुजुर्ग को, वली को इबादत नहीं कर रहा है, बल्कि इसे मोहब्बत के तौर पर सिजदा कर रहा है, और शरीयत में जायज नहीं है। तो इस वजह से सिजदा करना हराम है, करने वाला गुनहगार है। तो लेकिन तबलीग जमात वालों ने जो किताबें लिखी देवबंदियों ने, तो उन किताबों से काफिर हो जाता है, मुसलमान ही नहीं रहता। गुनहगार तो गुनहगार, जैसा एक चोर चोरी करा तो क्या काफिर हो जाता है क्या चोर? नहीं, गुनहगार हो जाता है, गुनहगार होता है। तो एक बात गौर से सुनो, समझो, गुनहगार होना अलग बात है, काफिर होना अलग बात है। ऐसा चोरी करा तो वो काफिर नहीं हुआ, गुनहगार हुआ। झूठ बोला तो वो काफिर नहीं हुआ, गुनहगार हुआ। लेकिन अगर कोई नबी के बारे में गलत बोला, अल्लाह के बारे में गलत बोला, तो क्या होता है? काफिर हो जाता है। तो इसी वजह से हमारे जो लोग गलती करते हैं वो गुनहगार है। हमारे लोग एक जाहिल आवाम करते हैं और वो गुनाह करते हैं, और तबलीग जमात के उलमा करते हैं और वो कुफर करते हैं, काफिर होते हैं, क्योंकि वो काफिर वाला काम किया, काफिर वाली बात कहा उसने। तबलीग जमात के उलमा ने काफिर होने वाली बात कहा था किताब में, एक दो बातें नहीं, 300 बातें। एक बार काफिर हुआ तो बंदा काफिर होता है, फिरौन के बराबर काफिर होता है। लेकिन देवबंदी तबलीग जमात वाले 300 बार काफिर हुए। 300 बातें उनकी किताबों में मेरे पास मौजूद है। मैं आपके अगर देवबंदी तबलीग जमात के जिस मरकज में आप जाते हो, उस मरकज के बड़े आलिम से अगर मेरे सामने आमने सामने बिठाओ, वो बोलते हैं ना कि हम ही हक पर है, 73 फिरके में, 73 फिरके में हम ही हक पर है। तो उनको बोलो मौलाना के आमने सामने बैठने को तैयार है क्या? वो सारी 300 बातें जिसकी वजह से ये काफिर होते हैं, उन सारी बातें मैं खोल खोल कर दिखा सकता हूँ। मैं ज्यादा दूर नहीं रहता। हाँ, एक रात का सफर है मदनपल्ली, यहाँ गोवा से मैं डायरेक्ट आ सकता हूँ, समझे? मैं गोवा में रहता हूँ। अच्छा, मैं एक रात का सफर है। आपके मौलाना को बोलो ये सब बातें हैं, आपके उलमा ने गलत किताबें लिखे हैं, जिसकी वजह से आपके उलमा को सुन्नी जमात वाले काफिर समझते हैं। और आप लोग जो गलती बताते हो वो तो आवाम की गलती है, उसकी वजह से काफिर नहीं होता, गुनाहगार होता है, गुनाहगार होता है। इसलिए आप इतने दिन जो कर आप लोगों के साथ घूम रहे थे वो सब गुनहगार है। आपने नहीं किया, आप बच के रहो, उनसे भी बच के रहो।
सही बात। जो कब्र पे सिजदा करते हैं उनसे भी आप बच के रहो, और ये तबलीग जमात वाले इनसे भी बच के रहो, क्योंकि ये अपने गलत उलमा को मानते हैं, ये चोर के सपोर्ट करने वाले हैं, इसलिए ये भी चोर है, समझे? ठीक है दस्तगीर भाई, और कोई मसले मसाइल होगा तो आपको बताता रहूंगा मैं, मेरे से जुड़े रहो इंशाअल्लाह। बात करने का हाँ, जो हमारा नंबर देना कदीमुल्ला साहब उन्हें ना वो करते के बुजुर्ग को मानते हैं, वो सज्जाते हैं उनके बाप दादा पूरे ऐसे ही हैं, वो जाके उधर से डायरेक्ट सजदा। और दूसरी ये नमाज पढ़ने का, नमाज की पाबंदी बिल्कुल नहीं है, नमाज की पाबंदी बिल्कुल कोई सी भी नमाज। दूसरी बात क्या है, दिन की बात भी बिल्कुल नहीं, दिन की बात कुछ भी नहीं। एक बात क्या करते हैं, आओ उसको उसमें कुछ न्याज वगैरह डालो और पैसे डाल के जेब में रख लो, बस ये काम जो कुछ नहीं। ये जो करते हैं ना, मैं पहले क्या कहा 73 फिरके हैं, करीमुल्ला को समझो, ऐसा मत करे भाई। हाँ, मैं रिकॉर्डिंग करीमुल्ला को भेज दूंगा, करीमुल्ला खुद समझ लेंगे। आप ये बताओ, ये भी एक फिरका अलग है, जैसा तबलीग जमात वाला एक फिरका है, हमारे बरेली भी जमात अलग है। ये जो आदमी मजार पे जाके सिजदा कराते हैं, नजराना सिर्फ हड़पते हैं और नमाज भी नहीं पढ़ते, ये लोग हमारे जमात के भी नहीं है। अगर हमारे जमात के होते, हमारे बड़े उलमा की बात मानते, हमारे बड़े उलमा आपके नजदीक में, आपके हैदराबाद में जाइए, बड़े बड़े उलमा हमारे मिलेंगे। जी वाली रिजवी साहब इंतकाल हुए, वो बहुत बड़े आलिम थे, और बहुत बड़े बड़े उलमा हैदराबाद में हमारे मौजूद है आज भी। तो हमारे बड़े बड़े उलमा की बात ये लोग नहीं मानते, तो ये हमारे जमात के भी नहीं है। ये पता नहीं ये कौन से हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ पैसे के पीछे पड़े हैं, ये हक पर चलने वाली जमात नहीं है। ये भी अगर हक पे चलने वाला, सुनो, ईमान के बाद अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म क्या है? नमाज है। नमाज मेराज, मोमिन की मेराज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में जाकर हमारे लिए तोहफा लाया नमाज की शक्ल में। तो मैं नमाज पढ़ाता हूँ, इमामत करता हूँ, मैं भी हर जुमा लोगों को कितना बोलते रहता हूँ, फिर भी लोग नमाज की पाबंदी नहीं है। हमारे में नमाज की बहुत कमी है। ये बात आपकी सही है कि नमाज नहीं पढ़ते, और बहुत सारे पीर होने के बाद भी वो नमाज खुद भी नहीं पढ़ते और मुरीदों को भी नमाज की पाबंद नहीं कराते, रोजा भी नहीं। और वो कहते हैं कि बस हमारे दामन थाम लो, जन्नत में जाओगे। वो पीर खुद जन्नत में नहीं जाएगा, मुरीद को क्या लेके जाएगा जन्नत में? जो बेनमाजी है, एक नमाज की अगर जानबूझ के कोई छोड़ देता है, हदीस में है, कोई जानबूझकर एक नमाज छोड़ दे, जहन्नम के दरवाजे पर उसका नाम लिख दिया जाता है, उसको जहन्नम में जाना जरूरी है। अल्लाह चाहे माफ करे, लेकिन जहन्नम उस पर वाजिब हो जाता है एक नमाज भी अगर जानबूझ के छोड़ दे। तो जब अल्लाह के रसूल ने सहाबा को माफ नहीं कराया नमाज, हो जाती है, तो ये पीर कौन होते हैं नमाज माफ कराने वाले? तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी पीर मुरीदी करने वाले, हम भी बरेली शरीफ को मानने वाले, हमारे में कोई भी बेनमाजी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा सबसे ज्यादा नमाज की ताकीद करते हैं, और नमाज मोमिन पर फर्ज है। और साथ साथ जो नए नए फिरके पैदा हो रहे हैं, उन फिरके से भी दूर रहना है। रोज नया कोई फिरका पैदा हो रहा है, जो फिरका पैदा हो रहा है आप बोले नहीं मुझे वो सही रास्ता मिला, नया फिरका कभी सही नहीं होता, पुराना फिरका सही होता। पुरानी जमात, हमारी जमात, हम पुराने जमात वाले हैं, हमारे बाप मुसलमान, हमारे दादा मुसलमान, हमारे परदादा मुसलमान, हमारे लक्कर दादा मुसलमान। तो जब हम सब मुसलमान से पैदा होके हम सिलसिला से आए हैं, अगर हम कोई नई जमात को मुसलमान समझ रहे हैं, इसका मतलब हम अपने बाप दादा को काफिर समझ रहे हैं, क्योंकि मुसलमान एक जमात होता है, दो जमात नहीं। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? दो जमात हक पर नहीं, एक ही जमात हक पर रहेगा, एक ही जमात जन्नत में जाएगी। तो आप नए फिरके में जा रहे हो, इसका मतलब आप जहन्नम की तरफ जा रहे हो। जो पुराना है वही जन्नती है।
تو آپ خود دیکھو آپ کے دادا کون تھے, آپ کے باپ کون تھے, سب سنی مسلمان تھے, بریلی بھی تھے. ہاں اگر بریلی بھی ہوتے ہوئے کوئی غلطی کر رہا ہے وہ غلطی کا حساب وہ خود دے گا, لیکن جماعت حق پر ہے. تو میرے بھائی اسی جماعت سے جڑے رہو, قائم رہو, نئے فرقے میں مت بٹو, نئے فرقے میں مت گھسو. جی اور تھوڑی بات کرنے کا, ایک بار ہمارا ایسا شاہد بن کے پاس گیا, ایک ساتھی کیا ہے یعنی اس کو نوکری مل گئی گورنمنٹ میں, جاب مل گیا اس کو. اس کے بعد میں کیا کرا, وہ گیا پیر صاحب کے پاس گیا, بھائی لے لو میرے پاس سے نظرانہ رکھ لو. وہ چپ چاپ بیٹھے تک نظرانہ دیا اس نے, کچھ پیسہ سمجھو نا. اب سمجھو اس کی تنخواہ 10,000 روپے ہے, وہ جائے 200 روپے 300 روپے لا کے نظرانہ دیا اس کو, ایسا ہی پیسہ. معلوم ہے لے کے پیسہ دیکھیے کہ کتنا لائے, اتنا زیادہ پیسہ لائے, تیرا پگار کتنا ہے, تیرا پگار 10-12 ہزار ہے, 200 روپے لا کے دیتا ہے تو میرے کو کیا کرنے کا پیسہ ہے میرے کو, ایسا بول رہے ہیں. میرا انکا کے سامنے سنا حضرت, میرے کو ایسا وہی تو بول رہا ہوں. آج دیکھو پیر مرید پہلے جو پیر ہوتے تھے نا, جی پہلے زمانے میں غریب نواز ہمارے پیر تھے, معین الدین چشتی سنیے, سرکار غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ, خواجہ بند نواز کے سدراج حضرت توکل مستن سہروردی رحمۃ اللہ علیہ, یہ جتنے پیر تھے پہلے کے جو پیر ہوتے تھے نا, ان کی نظر مریدوں کے دل پر ہوتا تھا. کہ مریدوں کی دل دنیا کی طرف مائل نہ ہو, مریدوں کے دل میں اللہ کی محبت ڈالنا, اللہ سے کنٹیکٹ کرنا, ان کو اللہ سے کنیکشن کرنا, ان کے دل کا, ان کے دلوں کو صاف کراتے تھے, قرآن کی تلاوت سکھاتے تھے, ذکر اذکار سکھاتے تھے, وظیفہ سکھاتے تھے. یعنی پیر کے نظر کس پر ہوتے تھے, دل پر, مریدوں کے دل پر ہوتے تھے. آج کے پیر کیا ہے, مریدوں کے جیب پر ہے ان کی نظر, مریدوں کے جیب پر, دل پر نظر نہیں. مرید کا ہے, مرید سود کھا رہا ہے, بے نمازی ہے, گالی گلوچ کر رہا ہے, گناہ کا ہر طرح سے گناہ کا کام کر رہا ہے, لیکن مریدوں کی کوئی غلط بات کو اصلاح نہیں کرے گا, ٹوکے گا نہیں. اور ہر پیسہ والے کو جی حضوری پیروں کا یہ دستور بن گیا ہے. آپ غریب آدمی ہیں, آپ جاؤ, پیر آپ کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا, نہیں دیکھتا. جو پیسہ والا ہے, کروڑ پتی ارب پتی ہے, اس کو دیکھتے ہی پیر سب خود کھڑے ہو کر ان کو استقبال کریں گے, ان کو گدی پر بٹھائیں گے. پتہ نہیں چلتا پیر وہ ہے یا یہ ہے پیر. تو یہ لگتا ہے پیر خود دنیا داروں کے مرید ہے. میں میری بہت کڑوی بات کرتا ہوں, ہمارے لوگ بھی ہم سے بہت ناراض ہیں, سمجھے. ہمارے جماعت کے بھی بہت سے لوگ مجھ سے ناراض ہیں اسی وجہ سے کہ میں بہت کڑوی بات کرتا ہوں. لیکن بھائی حق راستے پر چلنا ہے, حق بولیں گے تو کڑوا لگے گا اور لوگ ناراض ہوں گے, لیکن اللہ کو راضی کرنے کی ہمیں بات کرنا ہے. کوئی راضی ہو یا ناراض ہو کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ مجھ سے راضی رہے. یہ جو پیر آپ بتا رہے ہیں, اب وہ پیر کیا کرتے کیا نہیں کرتے میں ان کے بارے میں کچھ نہیں بول رہا ہوں, لیکن جو پیر دنیا داری کی ان کو لالچ ہے, وہ پیر نہیں ہے. اصل پیر وہ ہوتے ہیں کہ لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرے, لوگوں کو جہنم سے بچا کر جنت کی طرف لے جائے. تو انشاءاللہ آپ خود اپنے لیے دعا کرے, اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلائے. یہی دعا کرے, اور جو پرانی جماعت ہے اس سے جڑے رہیں. اور تبلیغ جماعت کی جو بات میں بتایا اس کو آپ دھیان سے یاد رکھیں, یہ جماعت بھی بہت غلط ہے, ان کی کتابیں بہت غلط کتابیں ہیں, غلط کتابیں ہیں. ان کے علماء غلط راستے پر ہے, اس وجہ سے ان سے بھی دور رہے. ٹھیک ہے, اور بھی انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی. اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے اور غلط راستے سے حفاظت فرمائے اور جنت کے راستے پر چلنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم.